Welcome student to another lecture of electrochemistry, and this is lecture number 7, and we are going to deal a very important concept regarding this chapter, and that is as your heading for today's lecture, that is Nernst equation. Student, what this Nernst equation is, why it was necessary, let us first and foremost understand. In the last lecture, what we have discussed, now we have discussed this Daniell cell. Okay, we have taken one Daniell cell and I have told you that EMF of this Daniell cell is 1.1 volt. If you remember, the EMF of this cell is 1.1 volt. How this EMF has been calculated? The calculation was very easy, and the calculation that I did was, student, you still remember that E naught cell is equal to E naught cathode, E naught anode, and E naught cathode, E naught anode, I am all aware. This one is acting as cathode, that is copper, I hope you remember, and 0.076 volt for zinc with a minus sign, and that came the value as क्या ना 1.1 volt. तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया है लास्ट क्लास. वी आर अवेयर दैट EMF of this cell, that is Daniell cell, is 1.1 volt. How it has been calculated? Now with the help of this formula. Now student, it is quite obvious and it is also clear by now that this type of electrochemical cell are not only for lab purposes. It is helpful in our day-to-day life also, and you are having lot many electrochemical cell that are involved in our day-to-day activity in everyday's life. जो तुम लोग जानते हो, देखे हो, ठीक है, आपके आमने सामने है. आपके घर में ड्राई सेल काम कर रहा है, इन योर टॉर्च, इन योर रिमोट कंट्रोल्स ड्राई सेल काम कर रहा है, ठीक है, इन योर लैपटॉप्स लिथियम आयन बैटरी काम कर रहा है, इन योर मोबाइल्स लिथियम आयन बैटरी काम कर रहा है. फॉर योर इन्वर्टर पर्पसेस, फैन और ट्यूबलाइट जलाने के लिए एक लेड स्टोरेज बैटरी काम कर रहा है. सो देयर आर मेनी सच टाइप ऑफ इंस्टांसेस दैट आर देयर, examples that are there where this cell is helpful in our day-to-day needs. And in that case, student, what I wanted to say now, that the condition that I have taken to calculate this value is क्या, the standard state. हमने क्या लेके रखा है स्टूडेंट? द स्टैंडर्ड स्टेट लेके रखा है यहां पर टू कैलकुलेट द EMF ऑफ दिस सेल, which is not sufficient for me. What not sufficient for me? Because student, since we are using this cell in day-to-day activity, therefore student, I want the EMF of the cell in that condition itself, not at standard state. Standard state में हमको नहीं चाहिए, ठीक है, वो तो ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में. बट व्हाट इज द EMF ऑफ द सेल when I am using it at any condition, what I wanted to say, and what is the difference it will create with standard state. Now student, in the standard condition, I have told you the condition for the solution should be maintained at 1 molar, I have already told you these two things. Next student, I have already told you the temperature to be maintained at क्या, 298 Kelvin, temperature to be maintained at 298 Kelvin. And also I have told you one more thing, that if I use gas as my electrode, अगर मैं गैस आपके इलेक्ट्रोड के में यूज किया स्टूडेंट, जैसे SHE वगैरह लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, इफ आई यूज गैस एज एन इलेक्ट्रोड, देन दैट गैस pressure should be maintained at क्या, 1 bar pressure. So this is the condition of क्या, the standard state. But student, it is not always possible to maintain that condition at 1 molar, 298 Kelvin and क्या, the 1 bar pressure. ठीक है, ये पॉसिबल नहीं होगा. तो हमको जानना होगा स्टूडेंट कि EMF ऑफ द सेल एट एनी कंडीशन, ये हमको जानना होगा. यही बोलने का मेरा मतलब है, नॉट एट स्टैंडर्ड स्टेट, एट एनी कंडीशन. ठीक है, बिकॉज सेल इज यूज्ड इन आवर डे टू डे एक्टिविटी. नाउ स्टूडेंट, फॉर गेटिंग दैट EMF of the cell at any condition, then I have to calculate E cell. And how this E cell can be calculated? Now it can be calculated by this formula, E cathode minus क्या, E anode. Means what I wanted to say student, now in order to calculate EMF of the cell at any condition, I want electrode potential values of cathode and anode at क्या, any condition. तब जाके मेरा काम बनेगा. आई होप यू हैव गॉट द फुल इंट्रोडक्शन, फुल ब्रीफिंग, यू हैव गॉट द फुल आइडिया. तो मेरा अभी जो मोटिव रहेगा इन आवर लेक्चर इज टू कैलकुलेट द
electrode potential of cathode and anode at any condition, and if I get these two value, I can easily calculate EMF of the cell at any condition, and this will come handy for this purpose. This will come handy which one? The नर्स्ट इक्वेशन. मेरा ये प्रॉब्लम का समाधान कौन करेगा? द नर्स्ट इक्वेशन मेरा ये प्रॉब्लम का समाधान करेगा. और ये नर्स्ट इक्वेशन कैसे समाधान करेगा? नाउ लेट अस जस्ट गो अहेड. फॉर दिस स्टूडेंट यू टेक एनी रेडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, चलो मैं जिंक के बारे में बात करता हूं एंड ट्राई टू कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल of this cell. ठीक है, but before going into that EMF of the cell calculation, I have to get the electrode potential. तो चलो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं. तो नर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है? राइट द रिडक्शन रिएक्शन फॉर whom you want to calculate, for whom you want to calculate क्या स्टूडेंट? ना for whom you have to calculate the electrode potential. तो बोला नर्स्ट ने क्या बोला ना, सबसे पहले आप रिडक्शन रिएक्शन लिखिए जिसका आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहते हैं. तो दिस इज माय रिडक्शन रिएक्शन फॉर द जिंक इलेक्ट्रोड. क्यों ना? रिडक्शन पोटेंशियल हमको निकालना, बिकॉज आईयूपीएससी स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन इज टू यूज रिडक्शन पोटेंशियल फॉर यूनिवर्सल कैलकुलेशन. तो इसीलिए मैंने रिडक्शन रिएक्शन लिख दिया इस इलेक्ट्रोड का. क्लियर? नाउ स्टूडेंट इफ आई हैव रिटन इन दिस वन, व्हाट द नर्स्ट इक्वेशन सेज. नर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है? अब वो ध्यान से देखना स्टूडेंट. वो कहता है कि ई Zn2 plus Zn, you are all aware of writing the representation of electrode potential. ठीक है, Zn2 plus zinc is equal to क्या हो जाएगा ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ जिंक माइनस, ठीक है ध्यान से देखना क्या आने जा रहा है, आर टी बाई एन एफ एल एन प्रोडक्ट जिंक का कॉन्सेंट्रेशन बाई क्या ना, जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन. दिस इज द केस. प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट. तो जिंक इलेक्ट्रोड का कॉन्सेंट्रेशन बाई जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन. एक्चुअली द करेक्ट वर्ड फॉर दीज आर नॉट कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर, दे आर एक्चुअली करेक्ट वर्ड इज एक्टिव मास. यू आर ऑल फेमिलियर. एक्टिव मास एक्चुअली यूज होता है, बट फॉर द सिंप्लिसिटी से आईयूपीएससी बोला है कि क्लास 12 तक आप एक्टिव मास के बदले में अगर सोल्यूशन रहेगा आप कॉन्सेंट्रेशन ले लेना, ठीक है, और अगर गैस रहेगा आप प्रेशर ले लेना. Fine. And furthermore student, we have also aware that active mass of any solid या any liquid, याद करो केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े थे क्लास 11 में, that should be taken as one by convention. तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. we are all familiar about this one. तो इसको 1 ले लेना. अब स्टूडेंट ध्यान से देखना ना, यही वाला इक्वेशन को मैं कैसे शॉर्टेन कर सकता हूं, कैसे मैं इजियर अप कर सकता हूं, वो आप देखना ना. इफ आई टेक द वैल्यू ऑफ आर एज 8.314, इफ आई टेक द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एट 298 केल्विन, मतलब नॉर्मन रूम टेम्परेचर, मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड. फैराडे इज नोन टू मी, दैट इज 96500 कूलम. If I change this log n into log, I have to multiply it with 2.303. याद करो, अगर मैं ये सब को रिप्लेस कर दूं, then I will get a very sweet value that is easy to be remembered, and the expression of Nernst equation, ठीक है, becomes very very simplified. वो कैसे स्टूडेंट ना, E Zn2 plus zinc is equal to E naught Zn2 plus zinc minus, when I multiply these values, let me write those values, 8.314 for R, for temperature 298 Kelvin, multiplied by 2.303 just to convert this natural log into common log. That much idea you are all having. Next, number of electron लेनदेन, n stands for number of moles of electron लेनदेन हो रहा है, and F stands for Faraday, 96500. Got the idea? So this will change into log. And this zinc student, this zinc is solid, ये solid है zinc, देखो ये solid है यहाँ पर zinc, so that will be replaced by 1 according to our convention by क्या, concentration of Zn2 plus. So this is your whole idea. Got the idea? कोई दिक्कत नहीं. अब स्टूडेंट इसको मैं सॉल्व करूंगा. I will get a very very simplified version of Nernst equation, and that simplified version is in front of you. Zn2 plus zinc माइनस ये वाला जो वर्सन आएगा वो आएगा 0.059 बाई n, ये सारा का मल्टीप्लीकेशन, log 1 डिवाइडेड बाई क्या हो गया
जिंक का कॉन्सेंट्रेशन। सो दिस इज योर नर्स्ट एक्सप्रेशन, इसी को हम लोग कहते हैं नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड एट स्टैंडर्ड स्टेट, ऑफ एनी इलेक्ट्रोड एट स्टैंडर्ड स्टेट। आई होप यू हैव गॉट द फुल आइडिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब स्टूडेंट आते हैं कि चलो अगर बोल दिया कि चलो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालिए, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालिए, उसको कैसे निकालेंगे? इन द सेम मैनर आई विल कैलकुलेट, इन द सेम मैनर आई विल कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। कैसे ये होगा स्टूडेंट? ना फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस कॉपर, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए राइट द रिडक्शन रिएक्शन एट फर्स्ट। रिडक्शन रिएक्शन फॉर कॉपर क्या होगा स्टूडेंट? यू आर अवेयर अबाउट दैट वन, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या? कॉपर। हो गया रिडक्शन रिएक्शन। वंस आई राइट द रिडक्शन रिएक्शन स्टूडेंट, नाउ आई कैन इजीली राइट द नर्स्ट एक्सप्रेशन फॉर दिस वन। अभी हमने सीख लिया नर्स्ट एक्सप्रेशन कैसे आएगा ना, ई of copper electrode is equal to E naught of copper electrode minus 0.059 डायरेक्टली लिखेंगे, अब तो सीख लिया, बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लेन देन लॉग कॉपर बाई क्या हो जाएगा ना, Cu2 प्लस प्रोडक्ट बाई रिएक्टेड, याद रखिएगा प्रोडक्ट बाई रिएक्टेड Cu by Cu2 प्लस। ऑल्सो फर्दर मोर इट इज नाउ विजिबल दैट in this equation number of moles of electron लेन देन क्या हो रहा है ना, 2 हो रहा है, that can be also replaced further as क्या ना, ECU2 plus Cu E naught Cu2 plus Cu minus 0.059 by 2 log, ये कॉपर मेरा सॉलिड है तो 1 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, Cu2 प्लस। तो ये सब भी मेरा हो सकता है। सो दिस वे आई कैन इजीली राइट द रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका भी दे मैं लिख सकता हूं। सिमिलरली ये वाला में भी मैं स्टूडेंट यहां पर आई कैन इनपुट द वैल्यू फॉर जिंक के लिए मैं आराम से इनपुट कर सकता हूं, क्या है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, दिस कैन बी इजीली बाय क्या ना 2, मैं रिप्लेस कर सकता हूं, एंड कोई भी वैल्यू अगर दिया रहेगा तो कैलकुलेट भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सो दैट वाज द इनिशियल ब्रीफिंग हाउ टू कैलकुलेट द नर्स्ट इक्वेशन, कैसे आप नर्स्ट इक्वेशन को लिखोगे, कैसे उसका काम करोगे, ये मेरा ब्रीफिंग हो गया। अब स्टूडेंट चलते हैं, कभी कभी आता है कि गिव द क्या स्टूडेंट यहां पर ना, गिव द ग्राफ बिटवीन दिस कॉपर इलेक्ट्रोड एंड कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, किस तरह का ग्राफ, मान लो यही वाला मैं देता हूं, कभी कभी आता है सवाल ना, कैलकुलेट द प्लॉट ए ग्राफ फॉर दिस एक्सप्रेशन, इसका एक प्लॉट बनाने बोल दिया, लेट मैं ले लेता हूं EU Cu2 प्लस Cu और इधर मैं ले लेता हूं स्टूडेंट लॉग Cu2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, इसके बीच में अगर बोल दिया कि प्लॉट ए ग्राफ, तो कैसे प्लॉट करोगे स्टूडेंट? लेट अस सिंप्लीफाई दिस ग्राफ, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कैसे होगा। इसको स्ट्रेट लाइन कम में लेके आते हैं, तो कैसे ये लेके आएंगे, यहां पर आई एम राइटिंग दिस वन ना, ECU2 प्लस Cu इज इक्वल टू E नॉट Cu2 प्लस Cu, ये वाला वैल्यू देखो log 1 का वैल्यू तुम लोग सब जानते हो, चलो मैं स्टेप जंप नहीं करता हूं, प्यार से कर रहा हूं, गौर करना, log क्या हो जाएगा स्टूडेंट, log 1 माइनस log Cu2 प्लस, देख लो कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, दिस विल बी योर केस, log 1 का वैल्यू यू आर ऑल फेमिलियर, दैट इज इक्वल टू 0, तो फिर ये मेरा बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी चीज को थोड़ा सा मैं रिमॉडल करके लिख देता हूं, तो कैसे मैं लिखूंगा रिमॉडल करके, 0.059 बाई 2, ठीक है, log Cu2 प्लस, और इसको उधर लेके चले जाते हैं स्टूडेंट, व्हाट इज दैट ना, प्लस E नॉट Cu2 प्लस Cu, ठीक है, हो गया, और ये मेरा रहा ECU2 प्लस Cu। नाउ स्टूडेंट द थिंग दैट आर रिक्वायर्ड फॉर माय y एंड x एक्सिस, दैट इज क्लियर टू यू, ये आपका क्लियर हो गया, क्या है हमको चाहिए y और x एक्सिस में स्टूडेंट, इट इज क्लियर बाय नाउ ना, दिस इज माय y एक्सिस, तो देखो मैं क्या करूंगा ना, ये मेरा y इज इक्वल टू mx प्लस c, एनी डाउट, ऑब्वियसली नॉट। सो ये मेरा y एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस देखो मिल गया, और ये y इंटरसेप्ट हमको मिल गया, एंड द स्लोप इज ए पॉजिटिव स्लोप। तो ग्राफ कैसे आएगा स्टूडेंट, हाउ द ग्राफ विल लुक, द ग्राफ विल लुक लाइक दिस, ये इस तरीके से ग्राफ लुक होगा, ओके, दिस वैल्यू विल बी योर y इंटरसेप्ट एंड दिस वैल्यू विल बी व्हाट स्टूडेंट ना, E नॉट Cu2 प्लस Cu, ये वैल्यू आ जाएगा तुम्हारे लिए स्टूडेंट, ठीक है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, द स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी दिस वैल्यू एंड दैट विल बी 0.059 by 2. So like this you can draw the plot of this Nernst equation. इस तरह का सवाल आएगा, तैयार रहिएगा, ओके। नाउ स्टूडेंट वी आर रेडी
फॉर सॉल्विंग वन न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बगैर तो कोई फायदा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विथ वन ऑफ ए वेरी वेरी सिंपल न्यूमेरिकल इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन, लेट अस स्टार्ट विथ द क्वेश्चन। कैलकुलेट ई नॉट mg2 प्लस mg, ये हमको कैलकुलेट करने बोला है। What are the values that has been given, student? Let us quickly understand and have those values. क्या क्या हमको दिया हुआ है? The given में है, ये given में तुमको दिया हुआ है स्टूडेंट mg2 plus, concentration of mg2 plus that has been given to you as 0.01 molar. Okay, temperature has been given to you as 298 Kelvin. Temperature has been given to you as 298 Kelvin. Okay, fine. And student E naught mg2 plus mg, मतलब electrode potential of magnesium at standard state has been given to you as minus 2.36 volt. ये तुमको दिया हुआ। These are the values that has been given, ठीक है। तो कैसे मैं करूंगा स्टूडेंट, फॉर फाइंडिंग द electrode, sorry student, this is E not E naught, E. So for finding the electrode potential of magnesium at these condition student, I have to write the reduction reaction. I have already told you, because my task is to calculate क्या student ना reduction potential। तो ये मेरा क्या लिया हुआ स्टूडेंट ना मैग्नीशियम लिया हुआ है, किसके अंदर डिप किया हुआ है स्टूडेंट ना, दे हैव डिप्ड इट विदिन क्या स्टूडेंट ना 0.01 मोलर मैग्नीशियम सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर डाला हुआ है। टेम्परेचर क्या लिया हुआ है ना 298 केल्विन। देन व्हाट इज द रिएक्शन दैट आई विल राइट, रिडक्शन रिएक्शन दैट आई विल राइट फॉर दिस, ऑलवेज राइट द रिडक्शन रिएक्शन बिकॉज यू आर गोइंग टू फाइंड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये हो गया मेरा रिडक्शन रिएक्शन। ना स्टूडेंट नेक्स्ट इक्वेशन कैसे लिखते हैं ना, Emg2 प्लस mg is equal to E naught mg2 plus slash mg minus 0.059 by n log क्या हो जाएगा ना मैग्नीशियम बाई मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज योर केस। ओके, नाउ स्टूडेंट द वैल्यूज हैव बीन गिवन टू यू, आपको दिया हुआ है, ये वाला वैल्यू दिया हुआ है माइनस 2.36 वोल्ट माइनस 0.059 बाई एन। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेन देन कितना हो रहा है 2 log 1 by concentration of magnesium is 0.01, ठीक है। ये हो गया, आई होप नो प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट, ये एकदम क्लैरिटी के साथ आ गया। फर्दर मोर स्टूडेंट यहाँ पर 0.059 हो जाएगा ये, बिकॉज आई हैव टेकन द टेम्परेचर एज 298 केल्विन एंड रेस्ट वेर ऑल योर कांस्टेंट्स, सो नो प्रॉब्लम। मैक्सिमम टाइम यू आर गोइंग टू गेट 99.9 times you are going to get this temperature as 298 Kelvin, means you can simplify the formula straight away like this one, 0.1 times 1% times you can get a different temperature. In that case you have to calculate the whole thing again. Okay, now student after solving this log and all, ये value आप solve करोगे तो तुमको आंसर मिल जाएगा minus 2.42 volt. You will get the answer as minus 2.42 volt. So I hope no problem, you can easily calculate. log का value boards में दिया रहेगा, टेंशन में नहीं रहना है, ठीक है। You will not be provided with log table in your board exam. log का value दिया रहेगा, आपको काम करना है, ठीक है। बट फॉर योर स्कूल एग्जाम लॉग का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, आपको लॉग टेबल मांग के काम करना होगा। आस्क फॉर द लॉग टेबल ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इन योर स्कूल एग्जाम and logarithm has been already discussed in class 11 in all the sections, so you are all aware of finding the log from the log table. So now we will take one more question from your board examination और देखते हैं कि कैसे बोर्ड्स में क्वेश्चन दिया जाता है। So student, this is a question from your board examination and frequently this type of question is also appearing in your JEE Mains, NEET as well as in advanced. So let us see how the question has been put to you. Calculate the potential of half cell, ठीक है। हाफ सेल मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल containing 0.1 मोलर K2Cr2O7 aqueous, ठीक है। 0.1 मोलर K2Cr2O7 aqueous solution, 0.2 मोलर Cr3 plus aqueous chromium ion, ठीक है, Cr3 plus aqueous and 10 to the power minus 4 molar H plus aqueous. The half cell reaction is Cr2O7 2 minus aqueous plus 14H plus aqueous, 6 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, 2Cr3 plus aqueous और 7H2O liquid. So 6 electron is gained during the reaction and that clearly proves that this is a reduction reaction. तो रिडक्शन रिएक्शन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल निकालना होगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल फॉर कैलकुलेटिंग दिस टाइप ऑफ हाफ सेल इज क्या स्टूडेंट, अगेन सेम ना, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल
माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0.059 मैं आराम से लिख सकता हूं बिकॉज 298 केल्विन हैज बीन गिवन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय लॉग, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये याद रखिएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर मान लो कोई आइटम यहां पर प्रेशर हुआ, जो मैं और एक न्यूमेरिकल लूंगा अभी थोड़ी देर में, कोई आइटम अगर यहां पर प्रेशर हुआ स्टूडेंट, देन दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ एटमोस्फेयर एंड ऑल लाइकवाइज, ठीक है। ओनली सॉलिड एंड लिक्विड शुड बी टेकन एज वन। अब आते हैं स्टूडेंट हाउ टू राइट दिस, देखो ध्यान से, Cr3+, सो डेफिनेटली ये कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये क्या हो जाएगा ना, स्क्वायर, याद करो लॉ ऑफ मास एक्शन याद आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन का पावर हो जाता है जो मोल्स में रहता है, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में रहता है, आई होप यू रिमेंबर, सो दैट आई हैव डन ओवर हियर, इनटू 7H2O लिक्विड, ये लिक्विड में मतलब 1 है, इसको नहीं लेना है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस डाइक्रोमेट आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस डाइक्रोमेट आयन, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 14, मल्टीप्लाइड बाय H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 14, सो दिस इज योर केस, आई होप नो प्रॉब्लम। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट ई सेल ऑल्सो हैज बीन गिवन टू यू एज कितना ना 1.33 वोल्ट, दैट हैज बीन ऑल्सो गिवन 0.059 बाय n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड कितना हो गया ना 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड इज 6 हो गया, लॉग क्या हो जाएगा स्टूडेंट ना Cr3+, का क्या कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ देखो स्टूडेंट ना 0.20, तो यहां पर डाल दो 0.20 का होल स्क्वायर बाई डाइक्रोमेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन, व्हाट इज दैट ना C 0.1 मोलर इज डाइक्रोमेट आयन कॉन्सेंट्रेशन, उसको वहां डाल दीजिए, इनटू H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -4 का क्या हो जाएगा ना होल 14, सो दिस इज योर पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं। अब स्टूडेंट वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व कीजिए, एक सिंपल लॉगरिदम आएगा, कोई टफ वाला लॉग नहीं आएगा, आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए, योर आंसर शुड कम आउट टू बी 1.33 वोल्ट, ठीक है, आपको ये आंसर मिल जाएगा। सो लाइकवाइज द क्वेश्चन विल अपीयर, इस तरीके से भी आ सकता है, तो आराम से नर्स्ट इक्वेशन से काम कर सकते हैं स्टूडेंट। वी विल वाइंड अप टुडेज लेक्चर with a last numerical that is from your NCERT book and it's a very famous numerical, बहुत फेमस सा न्यूमेरिकल है, तो देखते हैं यहां पर कि क्या ये न्यूमेरिकल हमको कह रहा है। फाइन, वी आर विथ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग योर बोर्ड्स एज वेल एज कॉम्पिटिशन स्टूडेंट, ठीक है, रिगार्डिंग क्वेश्चन विथ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। We are all aware with the hydrogen electrode, that is standard hydrogen electrode, and in that if you remember student, this type of figure I have drawn, and also I have told you that 1 bar pressure of hydrogen gas is flown inside this tube, a platinum strip has been taken connected with a platinum wire where the hydrogen gas gets adsorbed and the reaction proceeds, that I have already told you. Temperature maintained at 298 Kelvin. The only change over here that has been brought is concentration of acid. Concentration of acid has been brought a change over here, that is pH is equal to 10 लिया हुआ है। अगर कोई concentration pH is equal to 10 है, then student I can easily write that H plus ion concentration is equal to 10 to the power -10 molar। ये हम लोग जानते हैं from our ionic equilibrium concept that H plus concentration will be 10 to the power -10 molar। This is the simple concept of क्या ionic equilibrium that we are all aware of, हम लोग सब जानते हैं ये कैलकुलेशन। जैसे pH अगर 3 रहता तब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता 10 to the power -3, अगर pH 5 रहता तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता ना 10 to the power -5। सो दिस इज अ सिंपल conversion of pH to concentration of hydrogen ion concentration। so ये मेरा था बात। तो यहां पर only one change, that instead of 1 molar H plus solution, 1 molar H plus solution over the molarity of H plus is 10 to the power -10, and once I change this condition from 1 molar to any other, then student it do not remain a standard condition। ये standard condition का और बात नहीं रह जाता है। तो फिर क्या होगा, कैसे मेरे को करना होगा ना, डेफिनेटली जब स्टैंडर्ड कंडीशन का बात नहीं रह गया, देन आई हैव टू यूज नर्स्ट इक्वेशन टू कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ दिस सेल। इसका हमको नॉट सेल, दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का काम करने के लिए हमको किसका हेल्प लेना होगा, नर्स्ट इक्वेशन का हेल्प लेना होगा। नाउ लेट अस स्टडी द क्वेश्चन, क्या ये बोल रहा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड in contact with a solution of pH equal to 10, in contact with a solution of pH equal to 10, ठीक है, यही है एनसीईआरटी का क्वेश्चन स्टूडेंट।
एकदम सेम टू सेम हुबहू क्वेश्चन मैंने उठाया है, क्वेश्चन 3.4 इन टेक्स्ट एनसीईआरटी, यू कैन आल्सो सी। तो स्टूडेंट यहां पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जहां बोल दिया है, देन डेफिनेटली हाइड्रोजन गैस इज फ्लोन थ्रू 1 बार बिकॉज नथिंग हैज बीन मेंशन्ड, आई विल टेक इट एज 1 बार से ही फ्लो किया गया एंड टेम्परेचर टू बी टेकन एज 298 केल्विन। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं कैसे हम काम करेंगे इसका ना, ई पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो कैसे उसको, अच्छा स्टूडेंट सबसे पहला रिडक्शन रिएक्शन, ये चीज मत भूलना, सबसे पहला रिडक्शन रिएक्शन, तो राइट द रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन में कैसे लिखूंगा, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या, हाइड्रोजन गैस। इट्स सिंपल रिडक्शन रिएक्शन। आप रिडक्शन रिएक्शन ऐसा भी लिख सकते हो, कोई कोई स्टूडेंट हमसे सवाल करता है सर क्या मैं रिडक्शन रिएक्शन ऐसा लिख सकता हूं, आप एकदम लिख सकते हो ऐसा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी करेक्ट है स्टूडेंट, लेकिन तुम्हारा कैलकुलेशन में स्क्वायर रूट आ जाएगा, देयरफॉर आई अवॉइड यूजिंग दिस वन, दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक दैट आई यूज, आई डू नॉट यूज दिस इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग सच थिंग बिकॉज स्क्वायर रूट माइट appear during the course of calculation, so better use this expression, this reduction reaction, so that there do not come any square root factor. ओके, तो अब ये मेरा हो गया रिडक्शन रिएक्शन, सबसे पहला काम। नाउ राइट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लिखिए, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ H प्लस H2 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन obviously minus 0.059 by n लॉगरिदम, क्या हो जाएगा स्टूडेंट ना, लॉग, देखो हाइड्रोजन तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस बाई क्या ना, H प्लस ऑफ होल स्क्वायर, ये चीज H प्लस ऑफ होल स्क्वायर, ये हो गया। और प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस दिस विल बी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर बिकॉज ये गैस है और ये कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत किसी को, ऑब्वियसली नॉट। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, E नॉट ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यू आर ऑल फेमिलियर, बाई कन्वेंशन आई टेक इट एज क्या मैं लेता हूं बाई कन्वेंशन ना, जीरो, यू आर ऑल अवेयर दिस इज 0.00 वोल्ट, ये बाई कन्वेंशन हम लोग लेते हैं, SHE का वैल्यू 0.059 बाई n का वैल्यू क्या होगा ना 2 मोल्स, तो 2 हो गया। लॉग यहां पर क्या हो जाएगा ना, ये प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, व्हाट द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज ना 1 बार बाई H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दैट यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड 10 टू द पावर माइनस 10 का क्या होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है और कुछ बचा नहीं स्टूडेंट, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ EH प्लस H2 जस्ट सॉल्व दिस वन, तो ये वाला क्या हो गया ना 0.059 बाई 2, गौर करना स्टूडेंट, गौर करना ध्यान से, ठीक है, इसको मैं ऊपर लेके चले जा रहा हूं, इसको मैं ऊपर लेके चले जा रहा हूं, तब मेरे लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, गौर कीजिएगा ध्यान से ना, लॉग, ये log 1 का वैल्यू 0, कोई दिक्कत नहीं, फाइन, दिस इज log 1 का वैल्यू 0, तो इसको log 1 माइनस दिस भी कर सकते हो, log a बाई बी, log 1 माइनस log दिस वन, या इसको ऊपर लेके चले जाइए तो ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या होगा +20, ठीक है, सो log क्या हो जाएगा स्टूडेंट ना 10 टू द पावर क्या हो जाएगा ना माइनस से +20 हो जाएगा, इट्स इजीली विजिबल टू यू। तो नेक्स्ट लाइन में मेरे लिए क्या हो गया स्टूडेंट ना -0.059 बाई 2, गौर करना ये क्या हो गया ना 20 log 10, 20 log 10, तो 20 log 10 का वैल्यू क्या हो गया ना, ये 10 हो गया, log 10 का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, सो योर आंसर इज माइनस 0. क्या हो जाएगा स्टूडेंट 59 वोल्ट, माइनस 0.59 वोल्ट, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज योर आंसर। Obviously you have understood, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सिंपल न्यूमेरिकल लाइक दिस यू कैन इजीली सॉल्व इट। सो दिस वाज ए गुड न्यूमेरिकल फ्रॉम योर एनसीईआरटी। अब स्टूडेंट एक तो होमवर्क मैं दे रहा हूं, आप इस होमवर्क को कर लेना, ठीक है, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस टेक डाउन दिस एज योर होमवर्क, ये वाला सवाल आप होमवर्क के लिए उतार लीजिए, ठीक है, फाइन, इसको करना। सेम थिंग, द क्वेश्चन सेज दैट व्हाट pH ऑफ HCl विल द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बी दिस वन, पिछले में pH दिया हुआ था, अब तुमको बोल रहा है कितना pH में तुमको ये वाला वैल्यू मिलेगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, ठीक है, एट दिस टेम्परेचर एंड दिस प्रेशर, सेम आइडिया, कोई फर्क नहीं है, सेम फॉर्मूला, जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट द रिवर्स वन दैट इज pH, ओके, सो ट्राई इट एट योर होम and definitely you can do it. So we'll meet with another lecture on this Nernst equation in the next class. Till then student, stay safe and thank you.